Assalamu alaikum. This is English Guru. Today I am going to translate the first chapter of KPK Board Grade 9. As you can see, we are going to translate the first chapter now. The first chapter is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. ए ईमान वालों सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलाश करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. बर्दाश्त से हमारी मुराद एक गैर ज़ाती गैर जज्बाती रवैया है उन लोगों के साथ जिनकी तर्ज ज़िंदगी हमसे मुख्तलिफ होती है Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks, and action with patience and calmness. बर्दाश्त एक खूबी है जो एक शख्स को इस काबिल बनाती है कि वो सब्र और खामोशी के साथ दूसरों का सलूक और मनफी बातें बर्दाश्त करे The life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बर्दाश्त की एक शानदार मिसाल है It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ किया Truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. दर हकीकत में वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त, माफ़ी, सब्र और रहम की बेहतरीन मिसाल हैं The Holy Quran describes him as रहमतुल लिल आलमीन कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन के नाम से पुकारता है While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. मक्का में तबलीग इस्लाम के दौरान कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम को जलावतन कर दिया They lived in a valley called शाह अबी तालिब वो एक वादी में रहा करते थे जिसको शाह अबी तालिब कहा जाता है There was scarcity of food and water. वहाँ खुराक और पानी की किल्लत थी The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. मुसलमानों का कोई ज़रिए आमदन नहीं था और वो 3 साल के अरसे तक एक बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारते रहे During this situation, Prophet Muhammad ﷺ remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. इस अरसे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून और साबिर रहे और किसी भी किस्म का बदला लेने के बारे में कभी नहीं सोचा Even after he had conquered Makkah, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद भी अपने पैरोकारों को साबिर रहना सिखाया After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. फ़तह मक्का के बाद मुसलमान फ़ौज मक्का में आजिज़ी और अमन के साथ दाखिल हुई No house was robbed, no man or woman was insulted. कोई भी घर नहीं लूटा गया, किसी भी मर्द या औरत की बेइज्जती नहीं की गई. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम लोगों को माफ़ी अता फरमाई. After conquest of Makkah, when everybody gathered in Khane Kaaba, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the people of Quraysh, "What do you expect at my hands?" मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जब सब लोग खाने काबा में मौजूद थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं कि मैं आपके साथ क्या सलूक करूँगा They all shouted in one voice, kindness and pity, gracious brother, gracious nephew. They were not disappointed. वो सब यकज़बान होके तेज़ आवाज़ में बोले, मेहरबानी, रहम रहम रहमदिल भाई, रहमदिल भतीजे, वो नाउमीद नहीं हुए. The Holy Prophet Muhammad ﷺ said the same forgiving words as Prophet Yusuf salam had said to his brothers. Have no fear this day. May Allah forgive you, and He is the most merciful to those who show mercy.
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू व दरगुज़र के वही अल्फाज फरमाए जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को फरमाए थे। आज के दिन तुम मत डरो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो रहम करने वालों के साथ ज़्यादा मेहरबान होता है। The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. हत्ता कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और उसकी बीवी को भी माफ़ किया, जो कि पैगंबर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। He plotted many times against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did so. उसने कई मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें की, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसके साथ वैसा नहीं किया। Similarly, the story of Rabbi Zad is one such epitome of learning from Muhammad sallallahu alaihi wasallam's practices which reflects tolerance towards others. इसी तरह एक यहूदी पेशवा ज़ैद की कहानी एक आला मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखने के लिए, जो कि दूसरों के साथ बर्दाश्त को ज़ाहिर करती है। Once Muhammad sallallahu alaihi wasallam was attending the funeral of a man from Ansar. एक दफ़ा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक आदमी के नमाज जनाजा में शरीक थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, Hazrat Usman and some other companions were with him. Hazrat Abu Bakr रज़ी ताला अन्हा, Hazrat Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, Hazrat Usman रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और कुछ और साथी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। After the funeral prayer, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sat down close to a wall, and a Jewish rabbi, Zaid ibn Sanna, came towards him. नमाज जनाजा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साथ नीचे बैठ गए और एक यहूदी पेशवा ज़ैद इब्न सन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया। He grabbed the Prophet by the edges of his cloak, looked at him in a harsh way and said, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोगे के किनारों से पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से से देखकर कहा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, will you not pay me back my loan? I have not known the family of Abdul Muttalib to delay in repaying debts. ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम मुझे मेरा कर्ज़ वापस नहीं करोगे? मैं अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान को इस हवाले से नहीं जानता कि वो कर्ज़ की अदायगी में ताख़ीर करते हैं। After seeing what the rabbi did to her Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला anha's eyes swelled with anger. यहूदी पेशवा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूक देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें गुस्से से फैल गईं। He looked at the rabbi and said, O enemy of Allah, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner? उन्होंने यहूदी पेशवा को देखकर कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, क्या तुम अल्लाह के पैगंबर के साथ इस तरह बात या सलूक करते हो? The rabbi turned away and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यहूदी चला गया और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, You should have given us sincere counseling rather than act as you did. Go and repay him his loan and give him 20 sa extra because you scared him. तुम्हें चाहिए था कि तुम हमें मुखलिसाना मशवरा देते बजाय इसके जो तुमने किया। जाओ और उसका कर्ज उसे अदा कर दो और उसे 20 सा ज़्यादा दे दो क्योंकि तुमने उसे खौफज़दा किया है। Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु went to the rabbi, repaid him his debt and gave him an extra 20 sa of dates. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदी पेशवा के पास गए, उसे उसका कर्ज अदा कर दिया और उसे 20 सा खजूर इजाफी दे दिए। The rabbi asked Hazrat Umar radiallahu anha why, and he replied, The Messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. यहूदी पेशवा ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाफी खजूर का पूछा कि ये क्यों? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि ये तुम्हें दे दूं क्योंकि मैंने तुम्हें खौफज़दा किया था। The fact was that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not late in repaying the debt.
हकीकत ये थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ की अदायगी में कभी देर नहीं की। The rabbi was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's tolerance. बल्कि यहूदी पेशवा मुकर्रर दिन से पहले कर्ज की अदायगी का पूछ रहा था क्योंकि वो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त का इम्तिहान लेना चाहता था। The Rabbi Zaid found that tolerance and perseverance took precedence over anger and that harsh treatment was repaid with राबी जैद को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त और साबित कदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से पर सबकत ले गई और बुरे सलूक का बदला रहमदिली से दिया गया। Rabbi Zaid immediately renounced his religion and testified before the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यहूदी पेशवा ने फ़ौरन अपना मज़हब छोड़ दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाही दी। There was none worthy of worship but Allah alone and that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was his messenger कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। The tolerance of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bounds. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त की कोई हद नहीं थी। He always treated people with kindness and compassion. आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों के साथ मेहरबानी और रहम का सलूक किया। Violence, anger, endurance was never part of his personality. तशद्दुद, गुस्सा और गुस्ताखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का कभी हिस्सा न रहे थे। He showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत का सामना सब्र से और बुरे सलूक का सामना रहमदिली से किया।